خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جو رحمتوں کا بانی اور ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے، اسے زندہ امید کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ غیر فانی اور بے داغ اور لازوال میراث کو حاصل کریں۔ اس کی تمجید ابدالآباد تک ہوتی رہے، آمین۔ آئے مکاشفہ کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ کتاب ہے اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت میں لدوکیہ کی کلیسا، فلدلفیا کی کلیسا کے فرشتے کو خدا یسوع مسیح لکھ رہے ہیں۔ اور فلدلفیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں، وہ یہ فرماتا ہے۔ خدا یسوع نے اپنا تعارف کرایا۔ تعارف میں اس نے کہا جو قدوس اور برحق ہے اور داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولے ہوئے کو بند نہیں کرتا اور کوئی بند کوئی کھولتا نہیں ہے۔ یہ یسوع مسیح نے اپنا تعارف کرایا ہے۔ پہلی بات تو میں قدوس ہوں، برحق ہوں اور داؤد کی کنجی رکھتا ہوں۔ شاگردوں پر یہ بات عیاں کی گئی، شاگردوں کو یہ مکاشفہ تھا کہ خدا یسوع مسیح قدوس ہے، خدا کا قدوس ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے لیے ہم یوحنا کی انجیل اور اس کے 6 باب اور اس کی 59 آیت کو پڑھ سکتے ہیں، بلکہ تھوڑا سا اوپر سے پڑھ کر آئیں گے تو جہاں پر شاگردوں نے یسوع مسیح سے کہا کہ تجھے چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، کیونکہ یسوع مسیح کے کلام کے وسیلے سے کچھ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ اس پر اس کے شاگردوں میں سے بتیرے الٹے پھر گئے۔ یسوع نے جب کلام کیا تھا تو بتھیرے الٹے پھر گئے اور اس کے بعد اس کے ساتھ نہ رہے، اس کے ساتھ نہ رہے، اس کے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بس یسوع نے ان 12 سے کہا کیا تم بھی چلا جانا چاہتے ہو؟ یسوع مسیح نے دیکھنا چاہا کہ میں ان دوسرے باقی لوگ جو رہ گئے ہیں ان سے پوچھتا ہوں کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ شمعون پطرس نے اسے جواب دیا، اے خداوند، شمعون پطرس نے جواب میں اسے کہا، اے خداوند، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، اور ہم ایمان لائے اور ہم اس بات پر ایمان لائے ہیں اور جان گئے ہیں اور اس بات کو بھی جان گئے ہیں کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے، خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یہ مکاشفہ رسولوں کو ہو چکا تھا۔ یسوع مسیح اسی لیے تعارف کراتا ہے جو قدوس ہے، اپنا تعارف اس نے کرایا جو کون ہے؟ قدوس اور برحق ہے، قدوس اور برحق ہے، اور جو داؤد کی کنجی رکھتا ہے یعنی اختیار رکھتا ہے۔ داؤد کیا اختیار رکھتا ہے؟ داؤد کے تخت کا جائز وارث ہے، داؤد کے تخت کا حقیقی وارث ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں، دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، فلدلفیا کے فرشتے، میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا، اور اس دروازے کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ کہ تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، اگر تجھ میں تھوڑا سا زور ہے اور تو نے میرے کلام پر عمل کیا ہے، میرے کلام پر عمل کیا ہے، اور میرے نام کا انکار نہیں کیا، میرے نام کا انکار نہیں کرتا، دیکھ میں شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر دوں گا۔ اگر تو میرے نام کا انکار نہیں کرتا تو پھر میں دیکھ ان کو، کن کو؟ شیطان کے ان جماعت والوں کو، شیطان کے ان جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر تیرے دوں گا۔ قابو میں کر دوں گا۔ ایسی جماعت ہے جو شیطان کی جماعت کو تیرے قابو میں کر دوں گا۔ کون ہے وہ؟ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، وہ اپنے کو یہودی کہتے ہیں پر ہیں نہیں، لیکن یہودی ہے نہیں، بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بلکہ جھوٹ بولتے ہیں۔ دیکھ میں ایسا کروں گا میں ایسا کروں گا کہ وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے، وہ آئیں گے اور تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے، اور جانیں گے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ پھر وہ جان جائیں گے کہ مجھے تجھ سے، یعنی فلدلفیا کی کلیسیا سے اور کلیسیا کے فرشتے کے ساتھ، یعنی خادم کے ساتھ محبت ہے۔
اور کیا لکھا؟ चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है खुदा यसू ने उसके साथ वादा किया, कुदूस ने, बरहक ने, जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसने वादा किया है क्योंकि तूने क्या किया है? मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया मेरे है, सब्र के कलाम पर अमल किया है। इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त लेकिन अब मैं भी ऐसा करूंगा, आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूंगा तेरी हिफाजत करूंगा जो जमीन के रहने वालों के आजमाने के लिए जमीन पर रहने वालों के आजमाने के लिए। तमाम दुनिया पर आने वाला है। किसी एक खित्ते की बात नहीं करता, किसी एक शहर सिटी की बात नहीं, बल्कि तमाम दुनिया में एक आजमाइश का वक्त आने वाला है। ये फिलदिफिया के फरिश्ते को पहले ही बताया गया है कि मैं आजमाइश के वक्त जो है तेरी हिफाजत तेरी करूंगा। हिफाजत करूंगा। खुदावन यस्सू ने उन लोगों के साथ वादा कर रखा है जो उसके फजल के और उसके सब्र के कलाम पर अमल करते हैं। जो उसने कलाम किया है, फजल के कलाम पर अमल करते हैं, उनके साथ यीशु मसीह का वादा है कि जो दुनिया के ऊपर आजमाइश का वक्त आने वाला है, या आजमाइश का वक्त आएगा, उस वक्त में उनकी हिफाजत का जुम्मा यीशु अल मसीह ने ले रखा है। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है और पूरी दुनिया कोरोना वायरस की जद में आ चुकी है, और ये वो वक्त है जो पूरी दुनिया आजमाइश में है। पूरी दुनिया में आजमाइश का वक्त आ चुका है। पूरी दुनिया इस वक्त में से गुजर रही है और आजमाइश के वक्त में से गुजर रही है। और खुदावन यीशु मसीह ने उन तमाम लोगों के साथ वादा कर दिया है जो उसके सब्र के कलाम पर अमल करते हैं। आमीन। आमीन। इसका मतलब यह है कि उनके साथ वादा नहीं, जो सब्र के कलाम पर अमल नहीं करते उनके साथ ये वादा नहीं, लेकिन जो सब्र के कलाम पर अमल करते हैं उनके साथ ये वादा है कि कोरोना वायरस जैसी वबा से, कोरोना वायरस जैसी आजमाइश से जो पूरी दुनिया के अंदर है, ऐसे वक्त में मैं उसकी हिफाजत करूंगा। और मैं समझता हूं कि खुदा अपने लोगों की हिफाजत कर रहा है। बेशक। और ये उन लोगों के साथ वादा है उसका जो उसके फजल के, उसके सब्र के कलाम पर अमल करते हैं। हालेलुया। लूका की इंजील के अंदर खुदा यीशु मसीह ने एक तमसील सिखाई। लूका की इंजील है, उसका 8वां बाब है और उसकी 9वीं आयत में एक तमसील सिखाई। और उस तमसील में खुदा यीशु ने बताया है कि लोग कलाम के सबब से कई बार जब आजमाइश का वक्त उन पर आता है तो ठोकर खाते हैं। यहाँ पर खुदा यीशु ने अपने शागिर्दों को तमसीलों में कलाम करके और तमसीलों की समझ भी बख्शी ताकि वो इस पर अमल करें, ताकि आजमाइश के वक्त उनकी हिफाजत की जा सके। पढ़िए बेटा क्या लिखा है। उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ये तमसील क्या है। आप पीछे यीशु मसीह ने बीज बोने वाले की एक तमसील कही। रसूल सीखना चाहते हैं कि ये तमसील है क्या। उसने यानी यीशु ने कहा कि तुमको खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है। यीशु मसीह ने कहा तुम्हें रसूलो खुदा की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर औरों को तमसीलों में सुनाया जाता है, बाकी लोगों को तमसीलों में समझाया जाता है, उन्हें ये समझ नहीं दी गई ताकि देखते हुए ना देखें और कहीं ऐसा ना हो तो देखते हुए ना देखें और सुनते हुए ना समझें और सुनते हुए ना समझें। वो तमसील ये है यीशु मसीह ने कहा तमसील ये है, सुन लो तमसील, कि बीज खुदा का कलाम है। बीज तो खुदा का कलाम है। राह के किनारे वो हैं जिन्होंने सुना, राह के किनारे वाले वो लोग हैं जिन्होंने इस कलाम को सुना। फिर इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। इब्लीस आता है और उस कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है। ऐसा न हो कि ईमान लाकर निजात पाएं। ऐसा न हो कि वो ईमान लाकर इससे निजात पा जाएं। और चट्टान पर के वो हैं, चट्टान पर में बोया गया वो है कलाम है जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, कलाम को सुनते और खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते। लेकिन जड़ नहीं रखते हैं। मगर कुछ अरसा तक ईमान रख कर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। लेकिन कुछ अरसा तक आजमाइश के वक्त में क्या करते हैं?
پھر جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں. کچھ عرصہ تک تو کلام ایمان کو رکھتے ہیں. ایمان رکھتے ہیں، کچھ عرصہ تک تو صبر کے کلام پر عمل کرتے ہیں، لیکن آزمائش کے وقت جو ہے وہ اس کلام سے پھر جاتے ہیں، ٹھوکر کھاتے ہیں. ان کے لیے کوئی وعدہ نہیں، لیکن ہمارے ساتھ وعدہ ہے. وہ لوگ جو صبر کے کلام پر عمل کرتے ہیں. آزمائش کے وقت میں لوگ خدا کے کلام سے کئی بار ٹھوکر کھاتے ہیں اور پھر جاتے ہیں. حوصلہ کن بات یہ ہے کہ خداوند یسوع نے ہمارے ساتھ یہ بیش قیمت وعدہ کیا ہے. آزمائشیں تو آئیں گی، آزمائش کا وقت آئے گا، لیکن ہمیں اس آزمائش کے وقت میں صبر کرنا ہے. اور اگر ہم آزمائش کے وقت میں صبر کرتے ہیں تو پھر یقیناً خدا ہمیں اس آزمائش کے وقت سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے. یعقوب کا خط پڑھیں، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت کو پڑھ کر آئیں تو خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، خدا کے اور خداوند یسوع مسیح کے بندہ یعقوب کی طرف سے ان 12 قبیلوں کو جو جا بجا رہتے ہیں سلام پہنچے. اچھا، اے میرے بھائیو، ہاں. جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو اور رسول نے کہا کہ میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا تو اس کو آزمائشوں کو یہ جان کر کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، کہ تمہارے ایمان کی آزمائش جو ہے صبر پیدا کرتی ہے. اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو. اس کے لیے ضروری ہے کہ صبر کو پورا کام کرنے دیا جائے، اپنا پورا کام کرنے دیا جائے، تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ. جب پورا کام کرنے دو گے تو پھر پورے کامل ہو جاؤ گے، اور تم میں کسی بات کی کمی نہ پھر رہے. کسی بات کی کمی نہ رہے گی. خدا یہ چاہتا ہے کہ آزمائش کے وقت ہم صبر کریں، اور صبر کا کلام یہی ہے کہ جو کچھ خداوند یسوع مسیح نے کہا اس پر ہم عمل کرتے رہیں. جب ہم صبر کے کلام پر عمل کریں گے تو پھر خداوند یسوع مسیح آزمائش کے وقت میں تو پوری دنیا پر آتا ہے، یہ آئی ہوئی ہے، یہ آنے والی ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے. آمین. آمین. یہ ہر دفعہ خدا نے اپنے لوگوں کو آگاہی دی ہے کہ تمہیں صبر کرنا ضرور ہے، تمہیں صبر کرنا ضرور ہے. یسوع مسیح ایک دن اپنے شاگردوں کو آنے والے وقت کے بارے میں بتا رہے تھے. لوکا کی انجیل ہے اور اس کا 21واں باب اور اس کی 19 آیت ہے، بلکہ 18ویں آیت کو پڑھ کر آئیں گے. تو لوکا کی انجیل کے اندر خدا یسوع مسیح نے بتایا کہ دنیا پر کیسا وقت آنے والا ہے. لوکا کی انجیل 21 باب. پریز کرو. 18ویں آیت. ہاں چلو 18ویں سے پڑھ دیں. سلطنت پر سلطنت. 10ویں آیت. پھر اس نے ان سے کہا کہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، ٹھیک ہے. اور بڑے بڑے بھونچال آئیں گے اور جا بجا کال اور مری پڑے گی، اور آسمان پر بڑی بڑی دہشت ناک باتیں اور نشانیاں ظاہر ہوں گی. جی. لیکن ان سب باتوں سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے تمہیں پکڑیں گے اور ستائیں گے. اس سے پہلے وہ میرے نام کے سبب سے وہ پکڑیں گے اور ستائیں گے بھی، اور عبادت خانوں کی عدالت کے حوالہ کریں گے، اور بات ہم کی عدالت میں حوالے بھی کر دیں گے، اور قید خانوں میں ڈلوائیں گے، اور یہاں تک کہ قید خانوں میں بھی ڈلوا دیں گے. اور بادشاہوں اور حاکموں کے سامنے حاضر کریں گے. یہ وقت ہوگا کہ جب تم بادشاہ اور حاکموں کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. یہ تمہارا گواہی دینے کا موقع یہ ہوگا. تو موقع ہوگا کہ جب آپ گواہی دینا شروع کریں گے. بس اپنے دل میں ٹھان رکھو کہ ہم پہلے سے فکر نہ کریں یہ گے. بھی سوچنے کی ضرورت نہیں کہ ہم کون سی بات کہیں گے، کیا بتائیں گے. پاک روح خود ہی اس وقت تمہاری مدد کرے گا، کیونکہ میں تمہیں ایسی زبان اور حکمت دوں گا. خدا یسوع نے کہا ایسی حکمت دی جائے گی تمہیں، میں تمہیں ایسی حکمت اور زبان دوں گا کہ تمہارے کسی مخالف کو سامنا کرنے یا خلاف کہنے کا مقدور نہ ہوگا، اور پھر کسی کو تمہارے خلاف کوئی بات کرنے کا مقدور نہیں رہے گا. اور تمہیں ماں باپ اور بھائی اور رشتہ دار اور دوست بھی پکڑوائیں گے. یہ ایسا آزمائش کا وقت ہوگا کہ ماں باپ بہن بھائی دوست بھی پکڑوا سکتے ہیں، بلکہ وہ تم میں سے بعض کو مروا ڈالیں گے، بلکہ یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کروا دیں گے، مروا بھی ڈالیں گے. اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، تو یہاں تک کہ میرے نام کی وجہ سے سب لوگ تم سے دعوت رکھیں گے، لیکن تمہارے سر کا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا. تمہارے سر کا ایک بال بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں.
अपने सबर से तुम अपनी जानें बचाए अपने रखोगे। सबर से, अपने सबर से। सबर से, मेरे सबर के कलाम से तुम अपनी जानें बचाए रखो। आमीन। इसका मतलब सबर करना, आजमाइश आएगी लेकिन हमने सबर करना है। बेशक। इस कोरोना वायरस के दौरान भी हमने बहुत सारी बातों में सबर करना है। चर्च हम नहीं आ रहे हैं, हमने सबर करना है। लॉकडाउन हुआ है, हमने सबर करना है। मुझे कई भाइयों ने कहा है कि चर्च ना लगने के सबब से काफ़ी हम मुतासर हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि जब हम जमा होते हैं तो जमा होने के सबब से हम मिलकर दुआ करते हैं। उनके लिखा है जैसे जैसे उस दिन को नज़दीक आते देखते हो, जमा होने से बाज ना हो। जब हम जमा होते हैं खुदा की हुजूरी आती है। जब हम जमा होते हैं खुदा का मसा हम पर होता है। मैं समझता हूँ अगर ये लॉकडाउन में अगर हम नहीं जमा हो रहे तो इसमें भी हमें बर्दाश्त करना है, सब्र करना है। इसमें भी हमें सब्र के साथ अपने घर में मुतालिया करना है। सब्र के साथ अपने घर में शख्सी दुआ करनी है। अगर हाँ इन दिनों में इज्तिमाई दुआ नहीं कर रहे तो हम शख्सी दुआ कर सकते हैं। अगर इन दिनों हम इज्तिमाई मुतालिया नहीं कर रहे तो हम शख्सी मुतालिया कर सकते हैं। हमने सब्र का दामन नहीं छोड़ना है, हमने सब्र करना है। और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पे हमें सब्र करना ज़रूर है। इस तरह तुम सब्र करके तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। यीशु मसीह के नाम के सबब से हमसे दावत रखी जा सकती है। यीशु मसीह के नाम से हमें बातखानों से खारिज किया जा सकता है, अदालतों में खड़ा किया जा सकता है, हमें पकड़वाया जा सकता है और बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। लेकिन हमने सब्र करना है। चूंकि तूने सब्र के कलाम पर, चूंकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आज़माइश के वक्त क्या करूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा। तो यीशु मसीह ने हमारे साथ वादा कर रखा है कि मैं इस आज़माइश के वक्त में तुम्हारी हिफाजत करूंगा। इसलिए सब्र का दामन अपने हाथ से ना जाने दें। यकूब रसूल ने सब्र के तल्लुक से बहुत सी बातें सिखाई हैं। पलूस रसूल ने सब्र के हवाले से बहुत सी बातें सिखाई हैं। पलूस कहता है करंथियों को खत लिखते हुए, रोमियों को खत लिखते हुए 5 बाब की 30 आयत को पढ़ेंगे तो कह रहा है मुसीबतों में फ़ख्र करें। रोमियों खत है 5 बाब की 30 आयत बोल के पहली आयत को पढ़ कर आए। बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे, रसूल कह रहा है रोमियो को कि जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे हैं तो खुदा के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से, खुदा बाप के साथ अपने खुदावन यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। सुलह रखें। यीशु मसीह के वसीले ही हम बाप से सुलह रख सकते हैं, जिसके वसीला से ईमान के सबब से, जिसके वसीला से हम ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई, फिर हमें खुदा के फजल तक रसाई भी होती है, जिस पर कायम हैं और उस पर हम कायम भी रह सकते हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। और फिर खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें, खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। सिर्फ जलाल की उम्मीद पर ही फख्र न करें बल्कि और सिर्फ यही नहीं बल्कि मुसीबतों में भी फख्र करें। सिर्फ खुदा के जलाल की उम्मीद पर ही फख्र न करें बल्कि मुसीबत में भी फख्र करें। ये जानकर के मुसीबत से सब्र पैदा उसकी होता है। वजह है ये जानकर कि मुसीबत से क्या पैदा होता है, सब्र पैदा होता है। और सब्र से पुख्तगी, और सब्र से पुख्तगी पैदा होती है, पुख्तगी से उम्मीद पैदा होती है, पुख्तगी से फिर उम्मीद पैदा होती है, और उम्मीद से शर्मिंदगी हासिल नहीं होती है। क्योंकि रूह कुद्स जो हमको बख्शा गया है, खुदा का पाक रूह जो हमें बख्शा गया है, उसके वसीला से खुदा की मोहब्बत, उसके वसीला से खुदा बाप की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली गई है। प्रेज़ गॉड। इसलिए हमें मुसीबतों में और आज़माइशों में भी फख्र करना है। हमने खुदा यीशु मसीह पर फख्र करना है, उसके कलाम पर फख्र करना है और उसके सब्र के कलाम पर अमल करना है। ये आज़माइश का वक्त है और यह सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया, वर्ल्ड वाइड, ये वर्ल्ड ऑर्डर है, समझे, एक तरह का पूरी दुनिया को ऑर्डर दिया गया है कमरों में बंद हो जाओ। तो हमने इस बात पर अमल किया है और ये आज़माइश का वक्त है जिसमें हमने हमारे साथ जो वादे किए गए हैं खुदा इसमें हमारी हिफाजत करता है। आमीन। खुदा बाप हमारी हिफाजत करता है। यीशु मसीह के वसीले हमारी हिफाजत का ज़िम्मा लिया गया है।
आमीन। आमीन। एक और वाला मेरे साथ पढ़े, इब्रानियों के खत में साथ पढ़े। अब इब्रानियों के खत के अंदर हम पढ़ते हैं 12 बाब की पहली आयत में लिखा है, पहली आयत में लिखा है, बस जबकि गवाहों को ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बादल हमें, बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। तो अगर हम ऊपर लिस्ट पढ़ेंगे ना 11 बाब की, तो ये सारे गवाह हैं, इनको बादल के साथ तशबीह दी है, गवाहों के ऐसे बड़े बादल के साथ तशबीह दी है। ये ऐसे बादल नहीं थे जिनको हवा उड़ाले फिरती है, ये भरे हुए थे, और ये जहां बरसते थे वहां शराब भी आती थी। पूरी लिस्ट जो है ऐसे गवाहों के बादल से भरी, गवाहों का बादल जो है हमें घेरे हुए, वो हमें घेरे हुए है, उसकी लिस्ट पूरी भरी हुई है। ये ऐसे लोग थे जिनके वसीले से शताब्दी आई, जिनके वसीले से हरियाली आई, जिनके वसीले से लोगों की जिंदगियां मुनव्वर की गई। उन्हें बहुत लंबी लिस्ट है, उस लिस्ट को नहीं पढ़ता। रसूल ने छोटी सी बात करके ये सिखाया, बस जब गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से हर एक ऐसे गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है, दूर करके, उस गुनाह को दूर करके उस दौड़ में सब्र से उस दौड़ें, दौड़ में सब्र से दौड़ें जो हमें दरपेश है, जो हमें दरपेश है। उस दौड़ में सब्र से दौड़ें। खिलाड़ी जो हैं जब दौड़ते हैं तो उनके पास कई ज़रूरी चीज़ें होती हैं, कई बार उनका पर्स होता है और वो दुश्वारी पेश आती है उनको, वो अपना पर्स छोड़ देते हैं। यानी जो चीज़ें उनके लिए उनकी रेस के अंदर, उनकी दौड़ के अंदर रुकावट का बायस होती हैं, उनको साइड पर रख कर दौड़ते हैं ताकि वो कैसा सेहरा हासिल करें जो मुरझाने वाला है। लेकिन हम एक ऐसा सेहरा पाने वाले हैं जो मुरझाने का नहीं। हम दौड़ेंगे और सब्र से दौड़ेंगे, हर एक गुनाह को जो हमें उलझा लेता है, हर एक चीज को जो हमें उलझा लेता, जो हमारी दौड़ के अंदर रुकावट का बायस है, उसको साइड करके हम सब्र से दौड़ेंगे। क्या करेंगे? सब्र से दौड़ेंगे। और यीशु मसीह की एग्जाम्पल दी पौलुस रसूल ने, यीशु मसीह के जो ईमान का बानी है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। यीशु मसीह जो फाउंडर है ईमान का, जो ईमान का बानी है, उसकी एग्जाम्पल दी। उसने किस तरह सब्र किया, क्या उसने बताया? यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है कि ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु मसीह को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, वो उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके, शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, सलीब का दुख सहा। उसने सलीब का दुख, उसकी खुशी थी एक, वो एक खुशी हासिल करना चाहता जो उसकी नजरों के सामने थी। उस खुशी को पाने के लिए, उस खुशी को पाने के लिए शर्मिंदगी की परवाह नहीं की, शर्मिंदगी की कुछ परवाह ना करते हुए उस खुशी को पाने के लिए आगे बढ़ता गया। और क्या हुआ है? सलीब का दुख सहा। हाँ, किसका दुख सहा? सलीब का, सलीब का दुख सहा है। और क्या किया है? और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। क्या बात है! ये कुछ करने के बाद वो तनज़ली की तरफ नहीं गया, उसे बुलंद किया गया है, उसे ऐसा बुलंद किया गया है, उसे खुदावंद भी किया गया और मसीह भी किया गया, उसे खुदावंद भी किया गया और मसीह भी किया गया। पतरस रसूल यही बता रहे हैं, उसके काम के सबब से, उसके काम के सबब से जो उसने काम किया, जो उसने फर्माबरदारी की, आज़माइशों के वक्त उसने आज़माइशों की बर्दाश्त की, सब्र करता रहा, और उसके सामने एक खुशी थी। उस खुशी को पाने के लिए उसने शर्मिंदगी की, सलीब के दुख की कोई परवाह नहीं की, शर्मिंदगी उठाई ताकि उस खुशी को हासिल करे। इसीलिए बाइबल मुक़द्दस में लिखा है वो खुदा की दाहिनी हाथ बैठा जाकर। कहाँ पर बैठा? खुदा की दाहिनी हाथ बैठा। इसलिए लिखा, बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, ऐसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। अगर जो खुदा की सूरत पर था, उसने अपने आप में कब्जे में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने को खाली कर दिया और यहां तक फर्माबरदार रहा, मौत बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी सबब से, इसी
सलीबी मौत के सबब से, इसी ज़माश के वक्त के सबब से वो सब्र के कलाम पर अमल करता रहा, सब्र के कलाम पर अमल करता रहा। जो कलाम उसे पहुंचा था उस कलाम पर अमल करता रहा। उसने सब्र के कलाम पर अमल किया, जो कलाम उसके पास था उस पर अमल किया उसने। इसलिए उसने शर्मिंदगी की परवाह ना की और सलीब का दुख सहा। इस वक्त से खुदा बाप ने उसे बहुत सरबुलंद किया। क्या किया? बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा, यानी वो मुकाम बख्शा जो सब मुकामों से आला मुकाम है, ताकि यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के मुकाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनको जमीन के नीचे हैं। खुदा बाप के जलाल के लिए हर ज़बान इकरार करे यीशु मसीह खुदा है। ये वो मुकाम है जो किसी और के पास नहीं। यीशु मसीह खुदावंद है हमारी जिंदगियों का। पतरस रसूल ने यही कहा जब उसने पहला वाज किया, तो पहले वाज के अंदर यीशु मसीह की खिदमत को सराया, यीशु मसीह के काम की गवाही दी। उसने इस्राएलियों से कहा, 22 आयत को पहले दूसरे बाब की 22 आयत को पढ़ेंगे ना, तो वहां पर यीशु मसीह की खिदमत को, यीशु मसीह के काम की गवाही दी। ऐ इस्राएलियों, ये बातें सुनो। यीशु मसीह ने, पतरस रसूल ने यीशु मसीह की गवाही देते हुए इसराइलियों से मुखातब होकर कहा, इसराइलियों सुनो कि यीशु नासरी एक शख्स था, यीशु नासरी एक शख्स था जिसका खुदा की तरफ से होना, और जिसका खुदा की तरफ से होना तुम पर उन मौजज़ों और अजीब कामों, तुम्हारे सामने मौजज़ों और उन कामों के सबब से और निशानों से साबित हुआ, और निशानों और अजीब कामों से साबित हुआ, जो खुदा ने उसकी मार्फत तुम में दिखाए। खुदा ने उसकी मार्फत, अजीब काम और निशान उसकी मार्फत दिखाए। चुनाचे तुम आप ही जानते हो, और चाचे तुम तो यहूदी आप ही जानते हो, जब वो खुदा के मुकर्ररा इंतजाम, खुदा का एक इंतजाम है और वो खुदा के इंतजाम के मुताबिक चलता रहा, और इल्म खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के माफिक खुदा का जो इल्म था, खुदा का जो मुकर्ररा इंतजाम था, खुदा के मुकर्ररा इंतजाम और इल्म साबिक के माफिक पकड़वाया गया। तो तुमने बेशरा के लोगों के हाथों से उसे मसलूब कर डाला। तुम आप ही जानते हो कि तुम यहूदियों ने क्या किया है? बेशरा लोगों के हवाले उसे कर दिया और क्या किया? मसलूब करके मरवा डाला। लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, मौत के बंद खोले और उसे जिंदा कर दिया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो मौत उस पर कब्जा करके रहती, क्योंकि दाऊद उसके हक में कहता है, दाऊद ने पहले ही उसके बारे में पेशनगोई की थी कि मैं खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, खुदावंद को हमेशा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दानी तरफ है, और वो मेरी दानी तरफ है, ताकि मुझे जुम्बश ना हो, ताकि कभी मुझे जुम्बश ना हो। इस सबब से मेरा दिल खुश हुआ। दाऊद कहता है, इस सबब से मेरा दिल खुश और मेरी जुबान शाद है, बल्कि मेरा जिस्म भी उम्मीद में बसा रहेगा। कहता कि मेरा जिस्म भी उम्मीद से बसा रहेगा, इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे अरवा में ना छोड़ेगा। इसलिए कि तू मेरी जान को आलमे रवा का मतलब है कब्र में ना छोड़ने देगा। आमीन। आलमे रवा का मतलब ये नहीं कि वो कहीं पताल में चला गया था, इसका मतलब है तो मेरी जान को कब्र में नहीं जाने देगा, और ना अपने मुकद्दस के सड़ने की नौबत, ना ही अपने मुकद्दस को, यानी अपने उस बदन को सड़ने की नौबत देगा। तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई। दाऊद पहले ही कह रहा है कि तूने मुझे जिंदगी की राहें बताई, तू मुझे अपने दीदार के बाइस खुशी से भर देगा, अपने दीदार के खुशी से मुनव्वर कर देगा, भर देगा। ऐ भाइयों, मैं कौम के बुजुर्ग दाऊद के हक में तुमसे दिलेरी के साथ कह सकता हूं। करता है इन पेशनगोइयों की जो डिटेल बयान करता है, कहता है भाइयों, मैं दाऊद जो बुजुर्ग है, कौम के बुजुर्ग के बारे में तुमसे दिलेरी से कह सकता हूँ कि वो मुआ और दफन भी हुआ। दाऊद मर गया, दफन भी किया गया, उसकी कब्र आज तक हमें मौजूद है। कब्र तो आज भी हमारे बीच में है। बस नबी होकर ये जानकर के खुदा ने मुझसे कसम खाई है, नबी होकर और ये जानकर के खुदा ने मेरे साथ कसम खाई है कि तेरी नस्ल से एक शख्स को तेरे तख्त पर बिठाऊंगा, मैं तेरी नस्ल में से एक शख्स को तख्त पर बिठाऊंगा। उसने पेशन गोई के तौर पर मसीह के झूठने का जिक्र किया, पेशन गोई के तौर पर यीशु मसीह के झूठने का जिक्र कर दिया था कई सौ साल पहले, कि ना वो आलमे अरवा यानी कब्र में छोड़ा गया, ना वो आलमे अरवा ना वो कब्र में छोड़ा गया, ना उसके जिस्म के सड़ने की, ना उसका जिस्म गला सड़ा, ना उसका जिस्म फना हुआ। इसी यीशु को खुदा ने जिलाया, इसी यीशु को जिसको तुमने मसलूब किया, इसी को जिसको दफन किया गया था,
इसी को खुदा ने तीसरे दिन जिंदा किया, जिसके हम सब गवाह हैं। इसी के हम सब गवाह हैं। बस खुदा के दाने हाथ से सर बुलंद होकर, बस खुदा के दाने हाथ से सर बुलंद होकर, और बाप से वो रूल कुछ हासिल बाप से करके, उसने पाक रूह को हासिल करके, जिसका वादा किया गया था, जिसका उसने वादा किया था, उसने ये नाजिल किया उसने ये पाक रूह को नाजिल कर दिया है। जो तुम देखते और सुनते हो। जिसको जिसको ये गैर ज़बानी तुम सुन रहे हो और देख भी रहे हो कि किस तरह लोग गैर ज़बानी बोल रहे हैं और दुआ कर रहे हैं। और क्या हुआ? क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, और पतरस कहता है भाइयों दाऊद आसमान पर नहीं चढ़ा, लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावन ने मेरे खुदावन से लेकिन कहा, उसने खुद कहा नबूती अंदाज में, खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ। कि मेरी दाहिनी तरफ एक खुदावंद बैठ रहा है, दूसरा खुदावंद बैठ रहा है, बिठा रहा है। इसका मतलब है एलोहिम यहोवा अदोनाई बिठा रहा है, और दाऊद का खुदावंद जो अदूनी है वो बैठ रहा है। आमीन। अदोनाई एलोहिम यहोवा बिठा रहा है, अदूनी अदून से अदूनी है, अदूनी बैठ रहा है। आमीन। मैंने खुदावंद को अपने लिखा है, खुदावन ने मेरे खुदावंद से कहा मेरे दाहिनी तरफ बैठ, जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी न कर दूं। बस इसराइल का सारा घराना यकीन उसने नतीजा निकाला। पस लफ्ज है ना, पस जब बाइबल में आता है ना इसको सीखना चाहिए। पस नतीजा के लफ्ज है, पस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को, पस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदावंद ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब जिसे किया, तुम यहूदियों ने मसलूब किया, खुदावंद भी किया, खुदावंद भी कर दिया है, और मसीह भी कर दिया। वो खुदावंद भी है और मसा किया वो बादशाह भी। हालेलुया। इसी वजह से हर एक घुटना उसके सामने झुकता है, खास आसमानियों का हो खास जमीनियों का, हाँ उनको जो जमीन के नीचे है। खुदा बाप के जलाल के लिए हर जबान इकरार करती है यीशु मसीह खुदावंद है, बल्कि खुदावंदों का खुदावंद है। हालेलुया। और बादशाहों का बादशाह उसकी रान पर लिखा हुआ है, तो बादशाहों का बादशाह खुदावंदों का, उसके कलाम पर अमल करना है। उसने कलाम किया, खुदावंदों के खुदावंद और बादशाहों के बादशाह ने क्या कहा? उसने कहा जो कुद्दूस है, कौन है? कुद्दूस और बरहक, और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जो दाऊद की कुंजी रखता है। उसने फिलदिल्फिया के कलीसिया के फरिश्ते को कहा कि मैंने तेरे सामने एक दरवाजा खोल रखा है, कोई उसे बंद नहीं कर सकता, कोई उसे बंद नहीं कर सकता। अगर तुझे थोड़ा सा जोर है और तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, तो मैं भी आज़माइश के उस वक्त में तेरी हिफाजत करूंगा जो सारी दुनिया पर आने वाला है। आज़माइश का वक्त सारी दुनिया पर आ सकता है, लेकिन खुदा के लोग खुदावंद यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं कि वो कुद्दूस है और बरहक है और दाऊद की कुंजी रखता है, जो इस बात पर बिलीव करते हैं कि हमारा खुदावंद है, जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि हमारा खुदावंद है और खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया है, वो निजात पाते हैं, वो बीमारियों से निजात पाते हैं, वो आज़माइशों से निजात पाते हैं, वो गुनाहों से भी निजात पाते हैं। इसलिए इस मौजूदा वक्त में हमें सब्र करना है। सब्र से तुम अपनी जानें बचाए रखोगे। सब्र के साथ हमें सब्र को अपने हाथ से आगे पीछे नहीं जाने देना है। हालेलुया। खुदावंद यीशु इस कलाम के वसीले आपको बरकत बख्शे। आए अपने सर को झुकाएं। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, बख्श दे कलीसिया ग्लोरियस पेंटिकॉस्ट समेत पूरी दुनिया के लोग तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के फजल के कलाम पर अमल करें, जो कुद्दूस और बरहक और दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके बंद किए हुए को खोल नहीं सकता, जिसके खोले हुए को बंद नहीं कर सकता। उसके कलाम पर हम सब्र से अमल करें, उसके सब्र के कलाम को हम थाम कर रखें कि हमें सब्र करना जरूर है। तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु ने यही सिखाया, तुम्हें सब्र करना जरूर है, तुम्हें सब्र से अपनी जानें बचाए रखोगे। हमें इस आज़माइश के वक्त में सब्र करने का फजल दें और सब्र को पूरा काम करने दें हम, ताकि
हमें किसी बात की कमी ना रहे। सब्र को हम पूरा काम करने दे खुदावंद, कलीसिया को बरकत दे ताकि सब्र इनमें पूरा काम करे, ताकि खुदा इनके ईमान में कोई कमी ना आए, हमारे ईमान में कोई कमी ना आए। पर खुदा बाप हमें कामिल ईमान बख्श दे। ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु, हमारे ईमान को तू पावर देता है, हमारे ईमान को तू तकवीत देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। बरकत दे स्वामी बाप, अपने लोगों को बरकत दे ताकि सब्र के कलाम पर अमल करें, ताकि खुदा इस आज़माइश के वक्त में इसकी हिफाजत की जा सके। यस्सु मसीह के पाक नाम के वसीला से बीमारों के लिए हम दुआ करना चाहते हैं। आसमानी बाप, हम तेरे बेटे यस्सु मसीह के नाम से तमाम तर बीमारों को तेरे सामने पेश करते हैं। कलीसिया के अंदर अगर कोई बीमार है तो तेरे बेटे यस्सु के नाम की कुदरत से उनकी बीमारियां जाती रहें। दिल की बीमारियां, कैंसर की बीमारियां, गुर्दे की तकलीफ, रिसौली, कैंसर, हर किस्म की बीमारी तेरे बेटे यस्सु के नाम की कुदरत से और उसके कलाम के इख्तियार के साथ हम पर खुदा बाप इन बीमारियों को चले जाने का हुक्म करते हैं। उसने कहा जो कुछ मेरे नाम से बांधोगे आसमान पर बांध जाएगा। हम तेरे बेटे यस्सु के नाम से इन सारी तकलीफों को बांधते हैं और खुदा बाप दुआ करते हैं ताकि तेरे लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। अपने लोगों को बरकत दे, उनके रोटी और पानी पर बरकत दे। ऐ खुदा तेरे लोग सादतमंद हों, अपने हाथ की कमाई खाएं, इनके बच्चे जैतून के पौधों की तरह हों, इनकी बीवियां मेवेदार ताक की हों। तूने कहा ऐसी बरकत उसी को मिलेगी जो मुझसे डरता है। तेरे लोग तुझसे डरते रहें और तुझसे बरकत हासिल करें। अपने लोगों के खत्ते को, उनके रोटी और पानी को, उनके तेल की कुप्पी को, उनके आटे के मटके को भरपूर करना, उनकी सब जरूरतों को पूरा करना, उन्हें किसी चीज़ की कमी ना आए। यस्सु मसीह के नाम के वसीला से जिसने हम सबको सिखाया है। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारे रोज़ की रोटी आज में दे और इस अपने कर्जदारों को माफ़ कर दे। तुम्हारे कर्ज से हमें माफ़ कर, हमें आज़माइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। खुदा यस्सु मसीह का पाक फजल, उसका खालिस इत्मीनान तसल्ली आप सब की रूहों पर हमेशा तक रहे। आमीन। Praise God, praise God. खुदावन तुझे बरकत दे। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझको महफूज रखे। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझको महफूज रखे। अपना चेहरा तुझ पे चमकाए, अपना चेहरा तुझ पे चमकाए और तुझ पे मेहरबान रहे और तुझ पे मेहरबान रहे। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझको महफूज रखे।
अपना चेहरा तेरी ओर करे, अपना चेहरा तेरी ओर करे, अपना चेहरा तेरी ओर करे, और तुझको सलामत रखे, और तुझको सलामत रखे, खुदावन तुझे बरकत दे, और तुझको महफूज रखे, अपना चेहरा अपना चेहरा तुझ पे चमकाए, और तुझ पे मेहरबान रहे।